know some of the coaches saying, all are in cheerful mood. Tell me, raise your thumb. All are in cheerful mood. Oh, good, like it. So I know some of the coaches समझ रहे कि यार आज भी लेक्चर सुनना पड़ेगा. There is very hectic schedule of the lectures day by day, and morning and evening and afternoon. We all are giving the lectures, but no problem. I will not take much time today. I will decide the lecture within the time and area. Okay. So brief information regarding me. आवाज आ रही है संदीप क्या? Okay. So brief introduction about me. Myself Jitinder Singh, cycling coach, posted at NIS Patiala, associated with cycling last 37 years. 36 साल से 37 years से मैं cycling में इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, and participated in various international and national levels, and I won the medals, all nationals, more than 20 medals in the nationals, and the special thing is, accept the pursuit. I will get all the medals. Maybe point race, nationals में हो, sprint हो, time trial हो, team pursuit, maybe all the events. Accept also road event also. Road में भी मैंने medal national में दिया. Accept the individual pursuit, right? So as far as this is my sports achievements. 2-3 टाइम इंटरनेशनल पार्टिसिपेट भी किया, और कोचिंग के अंदर भी बच्चों ने भी इंटरनेशनल मेडल लिया. हेलो सर, स्टार्ट द शेयरिंग स्क्रीन सर. अच्छा, पीपीटी करता हूं अभी. पीपीटी, यस सर. ओके. So I done my little bit academic studies, done my masters in defense and strategic studies, and the masters in physical education, and the diploma in sports coaching, and diploma in sports management already, and now the days I am the scholar of the PhD. So I thank my coaches who concerned me, Mr. M.S. Chima, Shri Ginsar, and very highly thankful to Shri Amar Singh, who can give me the opportunity, who can give me the time-to-time help during my cycling days. And presently, I thankful to the SAI to give me a platform to give a lecture, and I also thankful to the CFI, our Shri Omkar Singh ji, VNG, who gave me chance to give the lecture to our cycling fraternity, and I thankful to my colleague coaches also. Now I come to my topic, special consideration of coaching children. So we'll start with the first. So special consideration while coaching children. So first of all, we start with the young performer. So young performer, क्या है? Young athletes are different, significantly different in their physical, psychological, and emotional makeup to their older counterparts, and these differences should be well recognized by coach. It is common. This is a very much important point where the coaching children will be revolving about. It is the common narrative. Coaching should be believe they are dealing with the little adults. That is the point. वो सोचते हैं कि ये बच्चा नहीं है, he is the little adult. इसके भी 2 हाथ है, पैर है, सिर है, और he can do anything. जो बड़ा कर सकता है वही छोटा कर सकता है. But this is not the case. Why this is not the case? Because of the young athletes motivated to participate. Maybe due to not desire to win. वो जीतने नहीं आता, वो ग्राउंड में बच्चा जीतने के लिए नहीं आता, but many other factors could be influencing on him, such as to be
with friends, such as to be with friends, to develop skills, to increase fitness level, to enjoy the sport, to participate in a group, personal achievement. लेकिन जो कोचेज है, हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चा जो है उसको फटाफट तकड़ा करके स्ट्रॉन्ग करके मेडल दिला दो, अल्टीमेटली उसको मेडल दिला दो। पेरेंट्स भी कहते हैं कि कोच साहब अभी देखो बच्चा आ गया, इसको एक साल में मेडल दिला दो, अभी इस नेशनल कमिंग नेशनल में इसको मेडल चाहिए। एंड द कोचेज हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी मिलेगा, इसको ये इक्विपमेंट दो, ये दो, वो दो, बट nobody can ask from the children ki what he wants. प्लीज सभी पार्टिसिपेट से मेरी रिक्वेस्ट है, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, तो जस्ट 2 मिनट व्यू, आफ्टर दैट अगेन स्टार्ट लेक्चर। प्लीज स्टे हियर। ಅಲ್ಲ that
Hello. Yes, sir. लेक्चर स्टार्ट करिए। ओके, अच्छा वॉल्यूम स्लो आ रहा है। ओके ओके बहुत ज़्यादा हो गया, 100%। हेलो, Yes, so sir. my voice is coming? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. So, okay. So we are coming back to the topic. Sorry for the interruption, and I can again little bit continue with the topic. Uh, so the young athletes needs what they want. बच्चे की तो कोई बात नहीं सुन रहा। कोचिज कहते हैं कि इसको हम मेडल नहीं ला रहे, पेरेंट्स कहते हैं कि 1 साल में मेडल चाहिए। But what the children want, he wants to be with the friends. Whenever he comes to the track, whenever he comes to the ground, he wants to be with the friends. ये उसकी इच्छा है to develop the skill. वो स्किल को डेवलप करना चाहता है, कुछ अच्छा करके बताना चाहता है, स्कूल में ये दिखाना चाहता है दूसरे काउंटर पार्ट से कि यस आई नो द साइकिलिंग, आई जंप द बाइसिकल टू इंक्रीज द फिटनेस लेवल। दूसरे बच्चों के साथ वो जाके अपने आप को थोड़ा सा अपना फिटनेस और दिखाना चाहता है कि आई एम bully than you, I am the more fit, I am the more energetic, and to increase their fitness level. This is already done to enjoy the sport. सेकंड जो थर्ड पॉइंट है फोर्थ, टू एंजॉय द स्पोर्ट, वो क्या करना चाहता है, उसको साइकिलिंग अच्छी लगती है। ही नेवर बी पार्ट ऑफ द इंडोरेंस ट्रेनिंग। उसको इंडोरेंस नहीं करना अच्छा लगता, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी अच्छी नहीं लगती। उसको क्या अच्छा लगता है, ही वांट्स टू बी ए रेसिंग बाइसिकल। रेसिंग बाइसिकल उसको दे दो और वो कहता है कि आज ही मुझे ट्रैक में चढ़ाओ। टू एंजॉय द स्पोर्ट, तो उसको एंजॉय करना स्पोर्ट के लिए। एंड द अनदर इज टू पार्टिसिपेट विद ए ग्रुप। उसको अच्छा लगता है कि ग्रुप के साथ वो रहे, ये इसकी डिमांड है, बच्चे की डिमांड है। लेकिन वी ऑलवेज इग्नोर दीज काइंड ऑफ द थिंग। हम उसको ये चीजें इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। पेरेंट चाहता है मेडल मिले, कोच चाहता है कि मैं मेडल दिला दूंगा, बट व्हाट ही वांट्स, दैट्स व्हाई ही कैन स्किप द ट्रेनिंग। वो ग्राउंड में नहीं आता और वो चला जाता है। कोचिज उसको कहते हैं कि बेटा चलो तुम इंडोरेंस करो, 5 किलोमीटर भागो, आज 10 किलोमीटर भागो, आज 2 किलोमीटर भागो, आप स्प्रिंट करो, आप स्ट्रेंथ करो, ये करो वो करो। ही डजंट वांट दिस काइंड ऑफ द थिंग। तो टू पार्टिसिपेट विद ए ग्रुप, तो वो ग्रुप के साथ भी अपना पार्टिसिपेशन करनी चाहता है। तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर स्टार्ट द कोचिंग चिल्ड्रन, one should know about the coaches should know about the what are the major differences between the children and the adult। उसके अंदर है क्या यार। वो सबसे बड़ी बात हम क्या करते हैं, डील देम द लिटिल एडल्ट। वो कहते हैं कि इसका दिल भी है, दिमाग भी है, आर्म्स थोड़ी थोड़ी छोटी है, लेग थोड़ी छोटी है, स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। ये तो कोई सोचते ही नहीं कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस। So before making a training program, before making a suitable program for the children, let the people know, let the coaches know about the what are the major differences, जो कि हमें नहीं पता है। ऊपर ऊपर से देखने को ऐसा लगता है कि यार वो ज्यादा कर रहा है। बच्चा अगर बड़ा 18 साल का लड़का है 60 किलोमीटर कर रहा है, ये 12 साल का है, इसको हम 30 किलोमीटर करवा दो, इसको 40 किलोमीटर करवा दो। बट दिस इज नॉट द केस। So children, number one is children have less strength than adults. Everybody knows, very simple point. And children have less patience, concentration, and reasoning capacity. अब इस बात की उड़ाओ, चिल्ड्रन हैव लेस पेशेंस, कंसंट्रेशन और रीजनिंग कैपेसिटी। बच्चों के अंदर पेशेंस कम है, वो ट्रेनिंग क्यों कम है, मैं सारी चीजों को ट्रेनिंग के साथ जोड़ता हूँ।
सारी चीजों को ट्रेनिंग के साथ कंसर्न करता हूँ। आप बच्चों को ट्रेनिंग कराओ, बच्चों को कराते हो तो वो फटाफट बोलते हैं कि मैं थक गया सर, अब मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। ये ट्रेनिंग तो मैंने दोबारा भी की है, आई डोंट नो, उसकी कंसंट्रेशन नहीं रहती ट्रेनिंग के अंदर। तो रीजनिंग कैपेसिटी भी उसकी कम है। रीजनिंग कैपेसिटी मीन व्हाट द, हाउ द स्पीड इज द बॉल इज कमिंग, हाउ द, व्हाट इज द साइकिल स्पीड इज गोइंग ऑन। रीजनिंग कैपेसिटी, उसकी जो दिमाग के अंदर चलने की ताकत है, वो किसी चीज को पहचानने की, दैट इज वेरी मच लो। So children have poor coordination while growing up. That's why the children poor coordination while growing up में, इसीलिए लड़कों बच्चों को चोट ज्यादा लग जाती है। एक तो स्ट्रेंथ कम है, कंसंट्रेशन कम है, रीजनिंग कैपेसिटी कम है, एंड देन द कोऑर्डिनेशन व्हाइल ग्रोइंग, कोऑर्डिनेशन कम होगा तो चोट लगेगी। यू हैव सीन द सो मेनी टाइम्स इन द ग्राउंड कि बच्चों को चोट बहुत लगती है, डेली वो चोट खा के आता है और घर में भी चोट खाता है। दैट्स व्हाई these are the key points whenever we make the training program. Children's balance and center of gravity is different to adults. Yes, balance of gravity, center of gravity of the children is less than the adults. थोड़ा सा धक्का मार बच्चा गिर जाता है, उसको पता ही नहीं कि हाउ ही कैन टेक द स्टांस, अपनी लेग को खोल के ब्रॉड करके अपना बॉडी वेट को नीचे शिफ्ट करके देन ही हैज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ा सकता है रेसलिंग के अंदर और गेम्स के अंदर, हैंडबॉल के अंदर। तो चिल्ड्रन हैव पुअर हीट रेगुलेशन कैपेसिटी। अब ये पॉइंट हुआ है पुअर हीट रेगुलेशन कैपेसिटी। हमें पता है कि ज्यादा गर्मी में बच्चों को लंबा ट्रेनिंग सेशन नहीं देना, तो आई विल कंसंट्रेट ऑन द, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर आऊंगा एंड देन कंपटीशन के ऊपर आऊंगा। बच्चों का इंजरी कितनी होनी चाहिए, ट्रेनिंग इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए। First of all, we should know about the what are the differences. Then we will make the training program for the children. Then we have the body temperature, nutrition, and summary. So these are the points, but one should know about the, so what are the major things which can be concluded. So they are more susceptible to growth injuries, which often have no cure but patience. So this is the much more important point. अब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हो, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब ग्रोथ इंजरीज क्या होती हैं, व्हाट आर द ग्रोथ इंजरीज, वन शुड नो अबाउट दिस। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए तो ग्रोथ इंजरीज कौन सी होती हैं और उनको कैसे क्योर करना है। पेशेंटली क्योर करना है, आराम से क्योर होंगी वो ग्रोथ इंजरीज। जस्ट लाइक माई बोन, ये जो हमारी एल्बो है, एंड ऑफ द एल्बोज, एंड ऑफ द नीज एंड द एंकल, जहाँ पे जो बोन का एंड पॉइंट होता है वहां पे ड्यू टू द मोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे हैव द, आपने देखा होगा गांव के अंदर या कहीं और भी, जब बच्चे उनकी टांगे जो है वो थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती हैं, दैट इज ड्यू टू द ओवरलोड, दैट इज ड्यू टू द मोर स्ट्रेंथ, जो उनको वो सेट नहीं हो पाती। तो ये चीज है। चिल्ड्रन हैव ए लोअर लैक्टेटेड पर्सन एंड टॉलरेंस। So this is the point which is connected with the physiology of the training. What are the effects of the training on the physiological part of the children? So lower lactate person and the tolerance. बच्चे जल्दी थक जाते हैं, उनका जो लैक्टेट लेवल है इसका बॉडी के अंदर, जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग लैक्टिक एसिड जिसको हम बोलते हैं कि पैदा हो गया, एवरीबॉडी नोज अबाउट द लैक्टिक एसिड, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट उसका जो लैक्टेट डिस्पर्सल है वो कंपैरिजन टू द अदर पीपल, सीनियर्स के मुकाबले में उनका जो वो लो रहता है, टॉलरेंस उसका लो रहता है। अगर एक बच्चा 18 साल का बच्चा ने सपोज करे 2 किलोमीटर का जॉगिंग कर ली और उसी सेम पेस पे लोअर पेस के ऊपर जूनियर बच्चे ने को किसी ने वॉक करवा दी या जॉगिंग करा दी, अगर अंडर 18 बच्चा 10 मिनट्स में रिकवर होता है तो ही और शी नीड्स द, जो चिल्ड्रन है बच्चा है, ही ऐसा टेक द 15 मिनट्स, मतलब उसको ज्यादा समय लगेगा उसको लैक्टिक एसिड के रिमूवल के लिए। तो दीज आर द सम पॉइंट्स व्हिच वी केप्ट इन आवर माइंड बिफोर start the training, before making the program, before we handle the children. So these are the things which will be kept in our mind. So in contrast to this, they have a high relative stroke volume versus cardiac output. इसका मतलब क्या होता है भैया, ये तो किसी ने सुना नहीं, पता नहीं, देखा नहीं, बस यही देखते हैं कि बच्चा आ गया, पर ये तो नहीं पता कि बच्चे का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना चल रहा है, बच्चे का कार्डिक आउटपुट कितना है,
और क्या उसकी जो बिगर हार्ट, स्मॉलर लंग्स एंड द हायर हार्ट रेट, आप देखो बच्चे की पल्स कितनी हाई चलती है। क्यों चलती है वो हाई? बिकॉज द हार्ट रेट इज हार्ट इज गुड बट द लंग्स आर द स्मॉलर। वो जो ऑक्सीजन देते हैं उसको, हार्ट को कैरी करने के लिए ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होती है, तो उस वजह से उसका हार्ट रेट को ज्यादा होता है। तो दीज आर द मच मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट द हाउ द कोच चिल्ड्रन। कोचिंग तो करनी है, देखो आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम, मैं ज्यादा समय है नहीं, ऑलरेडी 10:30 हो गया एंड आई विल बी कंक्लूडेड वन बाय वन विद इन द next 20 minutes. So children finally also have less experience of success and failure than adults. Very good, very good. So this is the competition point comes under the competition. तो कंपटीशन के अंदर ही डजंट हैव द एक्सपीरियंस। भैया आप लेके जाते हो तो कभी जिंदगी में खेला नहीं, कभी जीता नहीं, कभी हारा नहीं, कभी ग्राउंड में कंपटीशन किया नहीं, तो आप उसको कहते हैं कि जाके कंपटीशन में जाओ। तो ये पॉइंट हमें रखना पड़ेगा। ही हैज द, ये जो मैंने डिफरेंसेस आपको बताए हैं, दीज ऑल आर द kept in your mind before start the coaching. So now the my next slide is individual differences. So everybody is happy, listen और समझ आ रहा, सब सुन रहा, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं संदीप? ओके गुड। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाहे बच्चा हो, चाहे अंडर 18 हो, एलीट एथलीट हो, सबके लिए दिस इज द मच मोर इम्पोर्टेंट। ट्रीट चिल्ड्रन एज इंडिविजुअल। So, and when looking to improvements in performance, use their previous results as a measurement rather than against other children's results. हम लोग क्या करते हैं? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करते हैं कि यार घर में भी देख लो आप, बेटा कोई क्लास में गया बच्चा, रिजल्ट आया बच्चे के, हमारे बच्चे के आए सपोज करो 60% मार्क्स, तो मम्मी हमेशा यही बोलती है कि यार देखो वो पड़ोसी का लड़का 80% लाता है, तुम क्यों नहीं लाते, तुम क्यों नहीं लेके आते, वो पढ़ाई में इतना अच्छा, तुम क्यों नहीं अच्छे, तुम खेलते रहते हो। ही हैज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिकॉज ही हैज द गुड पैरामीटर्स ऑफ द बॉडी कॉम्बिनेशन, उसका नहीं है वो। ही इज गुड, इफ ही इज गुड इन स्टडीज, अदर स्टूडेंट गुड इन स्पोर्ट्स। When looking for the improvement in performance, use their previous result. हमें किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं करना भैया। ये मेरे जो यंग कोचेज हैं और माय रिस्पेक्टेड कोचेज, ये समझ लो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग elite athletes and the maybe under juniors हैं और maybe वो हमारे children हैं, किसी का रिजल्ट किसी के साथ कंपेयर मत करो। Every person has a unique combination of the muscles in his body, unique combination of the heart and lungs capacity, unique combination of the fat and the other things. So these are the, whenever we make the result, अगर उसका रिजल्ट को कंपेयर करना है तो यू हैव टू बी कंपेयर विद हिज अर्लियर परफॉर्मेंस। उसी की परफॉर्मेंस के साथ करो, बेटा तुमने 1 महीना पहले ये आपने रिजल्ट किया था, नाउ अभी आपका टेस्ट दोबारा होगा नेक्स्ट वीक और उसमें आपने ये किया एंड दिस इज योर इम्प्रूवमेंट, दिस इज योर लैकिंग। जो भी उसका प्लस और माइनस उसी के साथ कंपेयर करो। यू शुड नेवर बी कंपेयर विद अदर पीपल, दूसरों के साथ नहीं कंपेयर करना। उसका क्या है, कोई परशूटर दूसरे के साथ मत करो। हिज इंप्रूवमेंट इज गोइंग और नॉट, उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, बस ये आपका काम है देखना। अब वो क्या कर रहा है दूसरा दूसरे के साथ ही उसका उसके साथ होगा। तो दिस इज द मच मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज द करंट रिसर्च शोज दैट द चिल्ड्रन हु मैच्योर अर्ली आर मोर सक्सेसफुल एट स्पोर्ट्स इनिशियली, but this does not continue till adolescence. So this is the again a very important point. Some of the you see in the your school time, आप अपना recall करो school का time, some children are the bully in your class, वो आपको मार भी देते थे। कोई एक लड़का आपकी क्लासमेट है, आपका क्लासमेट है, लेकिन उसकी जो हाइट है 5 feet 8 inches है। इन द 4th और 5th क्लास के अंदर जब बच्चा 8 to 12 ईयर्स की एज में होता है, 4th और 5th क्लास के अंदर, उसका वेट भी 60 kg है और हाइट भी 5 फुट 6 इंच हो गई। तो ही इज ऑलवेज बुली यू ऑन द अदर पीपल, वो मारता रहता है, उनके साथ झगड़ा करता है, जाते जाते थप्पड़ भी मार देगा, उसको कुश्ती करके गिरा भी देगा। बट दिस ट्रेंड इज
ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी है। जो अर्ली मैच्योर बच्चे हैं वो जब आ जाते हैं हमारे पास, बिकॉज ऑफ द, वो आप बोलोगे वो कैसे फर्स्ट आ गया, तो इन अर्ली एज, अर्ली स्टेज में क्या होता है कि जो जनरल ट्रेनिंग ज्यादा होती है, स्पेशल ट्रेनिंग तो होती नहीं बच्चों के ऊपर, एंड वी नेवर कंसंट्रेट ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो हम उनको जनरल ट्रेनिंग देते हैं। जनरल ट्रेनिंग जब देते हैं तो उसमें जो बच्चे फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे ऑलवेज हैव द अपर हैंड, उनका हाथ हमेशा ऊपर रहता है कि वो इनिशियल स्टेज में, जैसे कि आप देखो अंडर 14 के बच्चे का जब रिजल्ट आता है, तो अंडर 14 बच्चा फर्स्ट आता है, ही हैज अ गुड लॉन्ग लिम्स, लॉन्ग मसल, हाइट भी ज्यादा है, बट दिस ट्रेंड इज नॉट गोइंग टू बी द डे बाय डे, और ये अर्ली मैच्योर, लेट मैच्योर में कैच अप टू द अर्ली मैच्योर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो क्या होता है, थोड़ा सा 12, 13, 14, 15 साल तक जाते जाते, 16 साल तक जाते जाते वो बच्चा जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती चली जाती है, वो बच्चा क्या होता है, पीछे रह जाता है अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी नीड्स द, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पे तो फिजिकल बॉडी का बहुत बड़ा रोल रहता है, अर्ली फैट हो रहती है उसके अंदर, ये सारी चीजें जो फिजिकल कैपेसिटीज में वो बेस्ट है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट होती है, बिकॉज ट्रेनिंग का जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग का पार्ट है बहुत कम उसमें यूटिलाइज होता है। तो जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग एज बढ़ती है, तो उसमें जो बच्चा ट्रेनिंग करेगा वो ही ऊपर आएगा, वेदर ही इज हाइट इज लो, वेट इज लेस, कुछ भी हो, लेकिन एज पर ऐसा उसकी जो ट्रेनिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें देर आर द 2 पॉइंट। तो एक तो अर्ली मेच्योर जो है वो उसका प्लस पॉइंट रहता है, लेकिन दिस ट्रेंड इज नॉट गो टू अप टू द 18 ईयर्स। लास्ट में तो ट्रेनिंग वाला बच्चा ही जीतेगा। अगर इसीलिए जो अर्ली एज में बच्चे होते हैं वो जीत जाते हैं, उनको लगता है कि यार इस बार मैं जीत गया, नेक्स्ट टाइम होता है कि कम ट्रेनिंग करके मैं जीतूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीतता कौन है लास्ट में? अब आफ्टर द 16 ईयर जब ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हो जाता है, तो क्या होता है, ट्रेनिंग वाला बच्चा जीतता है, बिकॉज स्पेसिफिक ट्रेनिंग चालू हो जाती है। नाउ वी कम टू द कॉम्पिटिशन। सॉरी, आई विल टेक लिटिल वाटर। So competition, I am very much specific on the coaching children, भी उसको क्या चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस, कंपटीशन, इंजरी, ये वो। आई एम नॉट बीटिंग अराउंड द बुशेस कि बस मेरे पास समय भी कम है और आपको भी इतना ज्यादा बहुत हो गया है ना। तो कंपटीशन, competition is neither good nor bad for the children. It is the emphasis on the outcome of the event that makes the event. तो ये क्या हुआ बात यार, कंपटीशन इज नाइदर गुड नॉर बैड, क्यों, ये क्यों है? ये क्यों, मतलब ऐसा कि ना वो अच्छा है ना वो बुरा। अच्छा है तो अच्छा क्यों है? अच्छा है तो इसलिए कि उसकी पर्सनल इंप्रूवमेंट हो, बुरा है तो इसलिए बिकॉज ही डजंट हैव द एक्सपीरियंस टू लूज द कंपटीशन। हम अगर बच्चे को द एंजॉयमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन शुड बी यूज्ड एज ए मोटिवेटर फॉर फ्यूचर कंपटीशन। Extreme stress associated with the competition can result in a loss of self-esteem and self-confidence, which may result in a loss of interest in the sport. तो कंपटीशन इसलिए बुरा भैया, जब बच्चा जाके कंपटीशन में उतरता है, उसको मैंने पहले जो डिफरेंस बताया था, ही डजंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द गेन और लॉस, हार और सक्सेस और फेल्यूर का उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो जाते ही जब दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन में हार जाता है, ही कैन, क्या होता है, अल्टीमेटली ही कैन स्किप द गेम, वो अपनी गेम को छोड़ देता है, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। नेवर कम फॉर द कंपटीशन। बच्चों को कंपटीशन मत करवाएं, अगर करवाएं तो ऐसा करवाएं कि ग्रुप ट्रेनिंग में करवाएं, जैसे कि फुटबॉल के अंदर और ये इन चीजों के अंदर। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, जोर से ज्यादा तो नहीं बोल रहा, ज्यादा लेक्चर ज्यादा तेज हो रहा है, थोड़ी स्पीड कम कर दूं क्या? No, sir. This continues, sir. No अच्छा, problem, sir. I can You take take it more further. time, sir. No problem, sir. अच्छा अच्छा अच्छा। Yes. तो उसमें क्या होता है कि कंपटीशन बच्चे को करवाएं आप, लेकिन ऐसा कंपटीशन होना चाहिए जिसमें कि आउटकम क्या है, उसकी पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए हो। यूज ऑफ द इंजॉयमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन मोटिवेट, और फ्यूचर पार्टिसिपेशन के लिए इसके लिए कंपटीशन हो, ना कि उसको जाके जीतने और हारने के लिए। और अगर बच्चा जीतेगा तो एक ही, लेकिन जो बाकी बच्चे हार जाएंगे, द प्रॉब्लम इज दैट दे कैन स्किप द गेम, वो साइकिलिंग छोड़ देगा।
क्योंकि वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जाके मेडल एक बच्चा जब स्कूल में दिखाता है, घर में दिखाता है, पड़ोसी का बच्चा, तो हमारा बच्चे का जब मेडल नहीं होता तो वो कहता मम्मी मैं कल को ग्राउंड नहीं जाऊंगा। तो कहते क्यों नहीं जाएगा, मेरी बेइज्जती होती है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं हारने और जीतने का। एज पर एज द एक्सपीरियंस इज गोइंग हायर, जैसे जैसे उसकी एज 16-18 साल होती है, अगर हम अब आप लोग देखो, कोचिंग देखो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने हमारे ऊपर सक्सेस और फेल्यूर का कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, बिकॉज वी पास आउट दीज थिंग्स, हमने बहुत ये झेल लिया, हमारे एक्सपीरियंस हो गया। बट बच्चा नहीं झेल सकता, वो आके रोता घर पे, और वो फिर कहता मुझे साइकिल ये लेके दो, वो लेके दो, मैंने उस कोच के पास नहीं जाऊंगा, उसके पास नहीं जाऊंगा। तो जो कंपटीशन होना चाहिए वो अच्छा और हेल्दी होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए बच्चों का, अदरवाइज इट विल गिव द नेगेटिव effect. And the extreme stress associated with the competition can also result in a loss of self-esteem. वो उसकी सेल्फ एस्टीम को भी खत्म कर देगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर देगा, विच में रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट। अल्टीमेटली लास्ट में उसका स्पोर्ट्स के अंदर, उसकी साइकिलिंग के अंदर में भी, फुटबॉल जो भी है उसके अंदर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, एंड एट लास्ट वो ग्राउंड में आना छोड़ देगा। एंड अवर दिस इज नॉट अवर एम, our aim is to come to the ground and he keeps us with us, हमारे साथ रहे, हमारे ग्राउंड में रहे, डेली आए, हमें हम उसकी मोस्ट प्रेजेंस को इंश्योर करें, डेली वो ट्रेनिंग करें, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। नाउ वी कम टू द, so that's why the competition is good or bad। good इसलिए है कि वो उसकी अपकमिंग के लिए, पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए हो, ग्रुप में हो, और बैड इसलिए अगर वो हार जाता है जाके तो एक्सट्रीम स्ट्रेस उसके ऊपर आ जाता है और उसका उसको एक्सपीरियंस नहीं है। दैट्स व्हाई कंपटीशन इज नाइदर गुड नॉर बैड। होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, ग्रुप में हो तो ग्रुप में कंपटीशन होगी, एक के ऊपर ब्लेम ना आए कि इसने ये हार गया, ठीक है ना, ग्रुप में होना चाहिए। तो माय नेक्स्ट स्लाइड इज इंजरी। So injuries, apart from the usual cuts, bruises and sprains, the most common injuries in children are those associated with the growth plate, जो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस करके आया हूँ। ग्रोथ प्लेट के अंदर उसको बोलते हैं एक्सरसाइजेस, जो कि हमारी एल्बो है, यू सी माई एल्बो, इफ माई एल्बो इज ओवरलोड में आ जाएगी या ओवर ट्रेनिंग में आ जाएगी या कोई हैवी ट्रेनिंग में करेंगे तो इंजरी उसमें होती है, राइट। मोस्ट कॉमन इंजरी इन द चिल्ड्रन आर एसोसिएटेड विद द ग्रोथ प्लेट्स, लॉन्ग बोन। इफ दीज आर इंजर्ड देन ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड। अगर ये किसी बच्चे की जो हाइट है वो इन चीजों के ऊपर, लॉन्ग बोन के ऊपर डिपेंड करती है। इफ दीज आर इंजर्ड then the growth can be affected. This type of injury is more common in the boys also. तो लड़के जो ज्यादा शरारती होते हैं कंपैरेटिव टू नॉटी होते हैं, कंपैरेटिव टू द गर्ल्स, लड़कियों को चोट कम लगती है बिकॉज वो पंगा कम लेती हैं। बॉयज आर द नॉटी। क्यों नॉटी है उसका भी एक रीजन है, ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन लेवल। उसका जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, वो उसको टिक के बैठने नहीं देता भैया, वो शरारत कर रहा है, छोटी उम्र में भी कर रहा है, 18 साल की उम्र में भी कर रहा है और 20 में भी और 40 में भी कर रहा है शरारत। टेस्टोस्टेरोन लेवल का हैज टू प्ले मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ द मेल हार्मोन, दिस इज द मेल हार्मोन। ये सारी चीजें भैया इंटरकनेक्टेड है। हम किसी चीज को स्किप करके खाली अगर इंजरी है तो इंजरी क्यों है, लड़की में इंजरी क्यों नहीं होती ज्यादा? इंजरी लड़की में शरारत कर ट्रेनिंग से होती होगी, लेकिन ओवरऑल बॉय ज्यादा। So avoid the activities that can lead the injury, growth plate and the bone such as। तो वो कौन सी वो एक्टिविटीज हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? फुल स्कैट और फुल नी बेंड। बच्चे के लिए जब आप ये देखो, अगर मैं एल्बो को मोड़ता हूँ, पूरा ऐसे नी को मोड़ दूंगा, फुल स्कैट और फुल बेंड जब मैं लगाऊंगा नीचे, तो द जॉइंट, द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट इज टोटली डिस्टर्ब, वो ज्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या, ग्रोथ प्लेट बच्चों की अफेक्टेड होगी। जो अंडर 18 और 20 है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज द यूजली एक्सपीरियंस, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है। एंड व्हाट इज द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज द एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू एंड द न्यू थिंग। तो उसका तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ट्रेनिंग भी यही चीज तो ट्रेनिंग है हमारी, यही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। बाउंसिंग स्ट्रेचेस,
जंप करके ऊपर तक भागना, these are the bouncing stretches जिसके ऊपर सीधा explosive power, maximum strength, explosive power, इसका ताकत लगती है बाउंसिंग स्ट्रेचेज में। एंड वी अगर हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर कि वी नेवर गिव द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ टू द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे बाउंसिंग स्ट्रेचेज क्या चीज है? बाउंसिंग स्ट्रेचेज आर रिच enriched with the explosive strength, maximum strength, and the power. Right? So excessive training volume. Excessive training volume से भी इंजरी होती है. Excessive training volume is very good point. My fellow coaches के ध्यान में भी ऐसा रहता है यार, जितना लंबा सेशन होगा, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करेगा, उतना ही वो तगड़ा हो जाएगा. This is the misconception in their mind. So be in your mind कि excessive training volume lead to the injury. थकने के बाद न्यूरोमस्कुलर जो कंट्रोल है उसका वो डाउन हो जाता है और इंजरी हो जाती है. थकने के बाद आफ्टर द फटीग न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है वो पुअर हो जाता है एंड देन लीड टू द इंजरी. साइकिलिंग में भी बच्चा कब गिरता है? तब जब वो थक जाता है. मोस्ट ऑफ द चांसेस थकने के बाद. राइट? एंड द ओवर यूज ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, अनदर ओवर यूज ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी, जैसे कि एक क्रिकेटर है या कोई टेनिस प्लेयर है, आप उसकी टेनिस प्लेयर की एक आर्म देखिए, राइट आर्म इज द वेरी स्ट्रॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म, and the thighs of the cyclist. I am giving the example. Every topic have the example, full of example. Excessive use of one side of the body. आप cyclist के thighs देखें, that is very stronger than the other athlete. तो अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो नी प्रॉब्लम साइकिलिंग में आती है. Why? क्यों आती है? That is due to the overuse. भैया ये जो घुटने बने हमारे, जो ये नी है, that is not made for the 100 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग. ये कोई 120 की रेशो को पुल करने के लिए नहीं बने हैं. दिस इज फॉर द ह्यूमन बीइंग. जनरल हमारी दिनचर्या के लिए भगवान ने बनाया ये शरीर, लेकिन इसका हम ओवर यूज कर रहे हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ द स्पोर्ट. कि यार मेडल लेने के लिए इतना हमने इसको खराब कर दिया अपने बॉडी को कि दैट्स व्हाई द योगा इज द मोर इम्पोर्टेंट. योगा क्यों ऊपर आ रहा है? जो ये वर्ल्ड के अंदर कल्चर हो गया ये जिम का, अब फॉरेन के अंदर भी जो देखो आप लोग, जिम कल्चर खत्म हो रहा है धीरे धीरे. दे आर अगेन टर्न अबाउट द योगा एंड द अदर थिंग. तो क्यों हो रहा है? योगा के अंदर तो कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं है. हाँ, ऑन बॉडी वेट उसके योग से वो है, इतना हमें जरूरत, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है. वन साइड ऑफ द ओवर यूज ऑफ द इंजरी बच्चों में भी है, कुछ पॉइंट बड़ों के ऊपर भी लागू होते हैं. हमारे अंडर 18 एलीट के लिए अंडर द एज ऑफ 40-50 इयर्स माय फेलो कोचेस तो ओवर यूज. सो नाउ वी कम टू द, आई थिंक यू इंजरी में आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा. तो नाउ वी कम टू द ट्रेनिंग इंटेंसिटी. ट्रेनिंग इंटेंसिटी इज अ मेजर पार्ट ऑफ द कोचिंग ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इंटेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना. तो ट्रेनिंग शुड नॉट बी ए स्ट्रेसफुल और हाई इंटेंसिटी. बच्चे को थकाना नहीं यार, ज्यादा थकने से ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये बात मेरी मान लो. एंड इंटेंसिटी वर्क शुड बी केप्ट टू ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो इंटेंसिटी है उसको बहुत कम समय तक के लिए अगर उसकी स्प्रिंट लगवानी है, यू शुड गिव देम द 10 मीटर स्प्रिंट, यू शुड गिव देम द 20 मीटर, 15 मीटर एंड विद द बॉल. नॉट बी एक्सपोज. उसका जो अंदर है उसको एकदम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश मत करो, उसको उतना ही दो जितना वो चाहता है. उसको इंटेंसिटी, हाईली इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं देना चाहिए, बिकॉज हर हर्ट इज टू स्मॉल. बच्चे का जो हर्ट का और इसका लंग्स का कॉम्बिनेशन है, दैट आर बी नॉट सपोर्टेड वेल, क्योंकि अभी वो इतना लोड लेने के काबिल नहीं है. डोंट मेक द चैंपियन एट ओवरनाइट. जो ये मेरे दोस्त कोचेस रातों रात ये लोगों के साथ प्रॉमिस कर लेते कि इस साल तेरे को मैं नेशनल में पक्का मेडल दिला दूंगा, तू ये कर ले, तू वो कर ले. बस ही पेरेंट्स को भी मेडल चाहिए, कोच को भी चाहिए मेडल. तो दिस इज नॉट द वे. तो आप इसको जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन जो इंटेंसिटी है बच्चों की, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेट ट्रेनिंग. समझ आ रही संदीप? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, थोड़ा पानी पीजिए. यस सर, क्लियर आवाज है सर, नो इश्यूज. ओके ओके.
तो नाउ इज द वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बच्चों को होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखो एवरीबॉडी नोज अबाउट द बार ऑफ द चिल्ड्रन की हमारी जो जनरल ट्रेनिंग है वो एट द एज ऑफ 14, एज ऑफ 8, एज ऑफ 9 या एज ऑफ 7 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। एंड द 80% is the general training as far as the if his age is 12 years, then we give the 60% general and 40% specific. And then age going as far as the age is going to be higher, the specificity is going to be much more and more and more. So weight training. So the safest and the most appropriate form of strength training for children would be exercising using their own body weight as the distance. You see the मैंने एक फोटो लगाई है, वो एक पेरेंट है, कोच है, बच्चे को पुशअप लगाना सिखा रहा है, ठीक है ना। ऑन बॉडी वेट से कुछ नहीं होगा। अगर वो साथ वाला वेट की उसको हेल्प कर दी बेटा कि इससे करो आप, तो वो तो बच्चा तो हमेशा इमिटेट करेगा। जो जिम के अंदर जाएगा, पेरेंट उसका लेके जाएगा, कोच के साथ जाएगा, कोच को बहुत हैवी वेट के साथ कर रहा है, वहां पे अदर एज ग्रुप के बच्चे भी हैं, 16 के, 18 के, 20 ईयर, 14 ईयर, बट our chap is only 10 years old, so he should be encouraged to exercising, use their own body weight as their distance. Distance समझे, resistance means उसका जो weight है, right? For pre-adolescent, weight training should consist of using light weights to help improve muscle tone, body image and self-esteem. तो आप उनको self-esteem and confidence, ठीक है। With all weight strength training sessions, children should be supervised at all times and taught safe and correct techniques with the under the supervision of coach. आप उनको, ठीक है, जो 12, 14, 16, 14 साल का बच्चा है, आफ्टर द एज ऑफ 12 आप उसको जिम दिए, जिम उसको एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ द वेट ट्रेनिंग, जिम हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन विद द जिम कि यार ऐसा ऐसा होता है बेटा, ऐसा ऐसा करने से ये एक्सरसाइज करने से ये होता है, बट वेरी लाइट वेट, नॉट फॉर द मेजर ट्रेनिंग पर्पस। जैसे बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाते हैं हम, दैट इज द सेम एज द वो इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, कर्सिव राइटिंग कैसा लिखी जाती है, आप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि कर्सिव राइटिंग कब शुरू होती है, जाके कर्सिव राइटिंग जैसे शुरू होती है वैसे ही वेट ट्रेनिंग शुरू होती है कि ब्यूटीफुली हमने कैसे ट्रेनिंग को मॉडिफाई करना है। तो एवरी टाइम कोच शुड बी सुपरवाइज विद द चिल्ड्रन whenever they go for the weight training, use their own body weights, right? Thank you. Next one. So next is the body temperature. So the body temperature of children should be clearly monitored as they cannot handle heat as well as the adult due to fact that they have the smaller surface area, larger surface area to body size and less sweat glands than adults. बच्चों के अंदर जो ड्यू टू द लार्जर एरिया ऑफ फैट जो ज्यादा होने की वजह से जो स्वेट ग्लैंड है वो कम होते हैं, दैट्स व्हाई वी विल गिव द ट्रेनिंग सेशन टू शॉर्ट फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि इसको गर्मी ज्यादा लगती है, इसको पानी पीने के लिए, हाइड्रेशन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा उसको इंकरेज करें, एंड द बॉडी साइज स्वेट ग्लैंड देन द अदर्स, देयरफॉर दे आर मोर ससेप्टेबल टू हीट लॉस एंड गेन। हीट उसको लॉस और गेन करने में ठंड भी ज्यादा लगती है और गर्मी भी ज्यादा लगती है। सर्दी के अंदर डोंट बी एक्सपोज इन द आउटर वेदर, और गर्मी के अंदर भी ज्यादा गर्मी में उसको ट्रेनिंग ना कराएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज फॉर द ड्रिंक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रीक्वेंटली। पानी की बोतल के बिना बच्चे को आप ग्राउंड के अंदर इनकरेज मत कीजिए। स्टील की बोतल होनी चाहिए, तो प्लास्टिक की बोतल ना इनकरेज करें, स्टील की बोतल हो। वाटर फ्रीक्वेंटली एंड अवॉइड ट्रेनिंग इन हॉट कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा गर्मी जैसे कि पंजाब के अंदर आप महाराष्ट्र में, राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो यू शुड प्लान द अर्ली मॉर्निंग प्रोग्राम, अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, ठीक है ना। ज्यादा गर्मी के अंदर बच्चों को ना रखें। क्यों ना रखें? क्योंकि गर्मी के लिए हीट और लॉस गेन ससेप्टेबल वो ज्यादा होता है। तो स्मॉलर सरफेस एरिया बॉडी साइज एंड लेस स्वेट ग्लैंड एंड देन द अडल्ट। जो स्वेट ग्लैंड है वो उसके थोड़े कम होते हैं कंपैरिजन टू द
हम सीनियर्स, तो बॉडी टेम्परेचर शुड बी क्लियरली मॉनिटर। ये इनका बॉडी टेम्परेचर देखते रहे कि देखो ये लू ना लग जाए, गर्मी ज्यादा ना लग जाए, उसका सीधा इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है। दैट इज आल्सो मच मोर, बट वी शुड encourage the children for the good amount of take the water. Very simple. Next point is, now we are going to be finish the my this is the I think last nutrition. We coaches as coaches we should encourage our athletes to eat a balanced and variety of food from the 5 food groups. इसके ऊपर बहुत लेक्चर हो गया। इवनिंग में भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, कोचेज हैं, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारे स्पोर्ट्स लेक्चरार्स हैं, ये साइंस के, वो न्यूट्रिशन के ऊपर डेली लेक्चर हुआ। कल भी बहुत अच्छा लेक्चर हुआ था। तो आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इन दिस, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो 5 फूड ग्रुप है हमारे, यू ऑल पीपल नो 5 फूड ग्रुप, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, सॉल्युबल पॉइंट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, शुगर है, साल्ट है, एंड द दीज आर द 5 फूड ग्रुप, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड द प्रोटीन, these are the some points which we will give them the plenty of fluids, water and getting the rest and sleep that they need. उसको हमने ये 5 फूड ग्रुप, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 60% रखें या 40% उसके अंदर प्रोटीन रखें, सॉरी कम 35% उसमें प्रोटीन रखें एंड 5-10% आप कॉम्बिनेशन बना के फैट और मिनरल और साल्ट का रख सकते हैं, बट उसको दीजिए। इसमें कोई ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। जो घर में बनता है दैट इज मच मोर सफिशिएंट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। हम लोग ज़्यादा वो ये ड्रिंक्स लेते हैं, ये प्रोटीन पाउडर दे दो, ये दे दो, दे आर द वेरी हार्मफुल फॉर द किडनीज एंड द लीवर। हमारे वर्ल्ड के अंदर भी ये जो प्रोटीन ले लेके बहुत लोगों ने हार्ट अटैक भी हो गया, उनको प्रोटीन से उनका लीवर और किडनी भी डैमेज हो गया। तो बच्चों को ये जो आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर हैं, इनके लिए आप इनकरेज मत करें। उनको आप जो बैलेंस डाइट है उसके लिए ही आप उसकी मॉनिटर करें, उसको प्रोग्राम बना के दें। बेटे एक दिन राजमा खाओ, एक दिन दाल खाओ, एक दिन ग्रीन वेजिटेबल खाओ, दूध सुबह शाम पियो, अंडा एक दिन डेली लो, वीक में 2 बार आप चिकन मटन कुछ भी ले लो, तो दीज आर द फ्रूट्स भी ले लें। दीज आर द थिंग्स which will have the nutrition and आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता। तो now we come to the another point which is टाइम क्या हो गया? ओ माय गॉड 11 बज गए हैं। चलो एक थोड़ा सा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, या इसको फिनिश कर दूं संदीप? No sir, continue sir, complete your lecture sir, no issue sir. और कंटिन्यू करूं? Yes sir, continue sir. Whenever we start the coaching, we have the start with the primary age. Primary age means प्राइमरी एज मीन्स जो उसकी एज है वो 7 to 12 ईयर्स एज है। इसको हम स्टेज 1 भी बोलते हैं, इंट्रोडक्शन एज भी बोलते हैं। तो दैट इज द मच मोर इम्पोर्टेंट इन प्लानिंग ए ट्रेनिंग सेशन फॉर चिल्ड्रन। द कोच शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। तो जो बच्चे कोच को जो है ये स्टेप रखने चाहिए ड्यूरिंग प्लानिंग ए ट्रेनिंग सेशन। अब ये दिस इज द मच मोर इम्पोर्टेंट। सारा कुछ तो आपने सीख लिया, कर लिया, अब प्लान कैसे करना है कोचिंग सेशन को, प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट इज अगेन मच मोर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले क्या करें ट्रेनिंग सेशन जाएंगे थी कोच इज फॉलोइंग स्टेप। नंबर 1 इज डेवलप द बेसिक टास्क। सबसे पहले आप एक जो टास्क है जो डेवलप करें, जो भी काम करना है उसको दी डेमोन्स्ट्रेशन उसके अंदर वेरी मच इम्पोर्टेंट होती है। दी डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी प्रिपेयर्ड टू द स्किल लेवल and development of the athlete, tumble turn, hill climbing, out of the saddle. These are the techniques during the task. जैसे कि डेवलप द बेसिक टास्क, हमने जैसे साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग के अंदर राउंड पैडलिंग एबिलिटी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लाइट रेशो के ऊपर बाई पार्ट बाई पोर्शन उसको हम ये चीजें देते हैं। तो उसके लिए टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टेक्निक को हम कैसे 3 भागों में बांट लेते हैं। फर्स्ट फेज इज द कॉग्निटिव फेज होता है, ये इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ।
कॉग्निटिव फेज होता है, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फेज फॉर द एनी टेक्निक। तो कॉग्निटिव फेज मीन्स थिंक अबाउट हाउ टू एग्जीक्यूट ए गुड मैनर, कि इसको कैसे मैं कर सकता हूँ, कॉग्निटिव फेज। इंटरमीडिएट जो होता है बीच का, एंड द थर्ड इज ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक जब उसकी उस स्किल के ऊपर मास्टरी हो जाती है, जैसे कि पैडलिंग के ऊपर, राउंड पैडलिंग के ऊपर, साइकिलिंग में बच्चे की मास्टरी हो जाती है। हम लोग जब साइकिलिंग करते हैं हमें लगता नहीं कि हम साइकिल चला रहे हैं, हमारी स्किल इतनी मास्टर है, साइकिल के ऊपर चढ़ते ही हमें साइकिल अपने आप चलना चालू हो जाता है। So whenever introducing a new skill, remember that the cognitive phase, large volume of information cannot be processed at once. बच्चों के लिए लार्ज वॉल्यूम इंफॉर्मेशन एक बार में ही उसको सारा कुछ ना बता दें कि यार ऐसा 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 होगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक बार में ही 1 घंटे में मैंने सारा लेक्चर दे दिया, बट बच्चों के लिए दिस इज नॉट पॉसिबल टू कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन केप्ट इन हिज माइंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेम द स्किल। आप उसको स्किल का नाम बताएं, डेमोन्स्ट्रेट द एंटायर स्किल 2 और 3 टाइम्स। जो स्किल आप करवाना चाहते हैं उसको 2-3 बार करवाएं, ठीक है। आइडेंटिफाई 1 और 2 की पॉइंट्स ऑन टू फोकस ऑन। स्किल के 2-3 पॉइंट आप बना लें कि यार दिस इज द मेजर पॉइंट, बेटा ऐसे करना, साइकिल के ऊपर अगर चढ़ना है, आपको राउंड पैडलिंग करनी है, या आपको जंपिंग करवानी है, साइकिल की फ्रंट व्हील लिफ्टिंग करवानी है, उसको आपने बताना है कि बॉडी वेट बेटे पीछे शिफ्ट करना है, हाथों को ऊपर से जंप करना है, हाथों को लिफ्ट करना है, बॉडी वेट पीछे शिफ्ट करना है। दीज आर द की पॉइंट एंड आइडेंटिफाई 1 और 2 पॉइंट एंड डेमोन्स्ट्रेट द स्किल अगेन, टॉकिंग देम थ्रू द स्किल। उसको स्किल करके दिखाएं। आप नहीं कर सकते, किसी जो ट्रेंड एथलीट है उससे करवा दें, साइकिलिस्ट से करवा दें, और आप उसको बीच बीच में बोल के ये सारी करवाएं। गेट देम टू द प्रैक्टिस टू द स्किल। बाद में उसकी स्किल की प्रैक्टिस करवाएं एंड देन उसको बाद उसको उसकी मास्टरी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लानिंग डेवलप द बेसिक टास्क के अंदर ही आ जाता है कि स्किल की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो डेवलप द बेसिक टास्क करें, फोकस वेयर एवर पॉसिबल ऑन इंडिविजुअल नीड। जो अब स्किल को करने के लिए ट्रेनिंग करो, उसकी इंडिविजुअल नीड क्या है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम फोकस करें कि ही इज लैगिंग इन स्ट्रेंथ, ही इज लैगिंग इन स्पीड, ही इज लैगिंग इन द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, बैलेंसिंग एबिलिटी पुअर है, कोऑर्डिनेशन इसका पुअर है, भैया इसको कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम किया जाए। प्रोवाइड ए बैलेंस ऑफ एफर्ट एंड रेस्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। हमने क्या करना है, जो बैलेंस रखना है ट्रेनिंग सेशन के अंदर, एफर्ट एंड रेस्ट का, कितनी ताकत कितनी इंटेंसिटी से काम करे। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमें उसको रिकवरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर इंटेंसिटी कम है तो रिकवरी भी उसके हिसाब से थोड़ी कम करें। जो ट्रेनिंग सेशन के अंदर उसको हमने बैलेंस बना के रखना है, जितनी ताकत उतनी रेस्ट, जितनी ताकत उतनी रेस्ट, राइट। प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। सबसे मच मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यही होता है बच्चों के लिए कि देखो भैया, मैं तो एक बात बोलता हूँ, जिस दुकान के अंदर सामान नहीं है, वैरायटी का सामान नहीं है, वो दुकान नहीं चलती। कोचेज को अगर अपना बेस्ट पार्ट करना है तो दे हैव द गुड वैरायटी इन देयर एक्टिविटीज। उसके ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर उसके पास दे हैव द सो मेनी ऑफ द वैरायटी ऑफ द ट्रेनिंग। उसको स्ट्रेंथ को 10 तरीके से कैसे करवाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस को कैसे करवाए कि वो बच्चों के लिए नया नया एक्सरसाइज ढूंढ के लाए। अगर हमने एक शर्ट भी लेनी है तो 10 दुकान में जाते हैं हम लोग, सारी दुकानें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन 100 शर्ट चेक करने के बाद देन वी विल बाय द न्यू शर्ट। तो बच्चा भी ऐसे ही है, एक एक चीज करके अगेन एंड अगेन ही विल बी कम टू द बोर्डरम। तो वैरायटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन द ट्रेनिंग एक्टिविटी। तो मिनिमाइज और एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्यूर, वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो उसके जो फेल्यूर का पॉइंट है वो नहीं होना चाहिए, राइट। मिनिमाइज करना है कि वो उसको हार ना लगे, ये ना लगे कि वो बच्चा हार गया, ठीक है। तो नाउ आई हैव द टाइम तो हो गया, जस्ट आई हैव द लिटिल 10 मोर पॉइंट्स। फोकस ऑन पार्टिसिपेटिंग नॉट विनिंग। तो बच्चे की ट्रेनिंग को आपने ऐसे ऑर्गेनाइज करें, फोकस ऑन पार्टिसिपेटिंग, उसकी इंश्योर करें कि वो ग्राउंड पे आए। जीतना हारना बाद की बात है, बच्चा ग्राउंड में आएगा, हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा, जीत तो अपने आप ही जाएगा इफ ही इज कंटिन्यू विद हिज ट्रेनिंग। फोकस ऑन टीचिंग प्रॉपर टेक्निक एंड स्किल, प्रॉपर उसकी टीचिंग करवाएं, स्किल की टेक्निक करवाएं। हाई फन कंपोनेंट विद गेम एंड रिले,
उसकी जो ट्रेनिंग है हाई फन कंपोनेंट उसके अंदर होना चाहिए। गेम्स एंड रिलेज का मीन ग्रुप एक्टिविटीज को आप ज्यादा करवाएं, राइट। शॉर्ट इजी कंपटीशन करवाएं। जैसे कंपटीशन मैंने पहले बताया, नॉट गुड नॉट बैड, अगर गुड है तो क्यों है, बैड है तो क्यों बैड है। तो जो कंपटीशन है वो हमेशा इजी करवाएं, ग्रुप के अंदर करवाएं। टीच रूल्स ऑफ कंपटीशन, थोड़ा बहुत उसको इंट्रोडक्शन विद द कंपटीशन ऑफ द करवाएं। इंस्टॉल सेंस ऑफ फेयर प्ले एंड स्पोर्ट्समैनशिप, बच्चों के अंदर आप इंस्टॉल सेंस ऑफ फेयर प्ले, जैसे कि फाउल तरीके से आपको नहीं जीतना, आपको अच्छा मेहनत करके ट्रेनिंग करके ही बेटे जीतेंगे तो मेडल मिलेगा, अदरवाइज फाउल मेथड से चीटिंग करके नहीं जीतना हमें। कीप वैरायटी इनकरेज एंड अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ठीक है, वैरायटी ऑलरेडी ट्रेनिंग के अंदर होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी दूसरी के लिए भी इनकरेज करें, बिकॉज जो दूसरी एक्टिविटीज है दे कैन डेवलप द अदर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, जैसे कि बास्केटबॉल खेले, टेबल टेनिस खेले, वॉलीबॉल खेले एंड द फुटबॉल, हैंडबॉल, अदर काइंड ऑफ द एक्टिविटीज हेल्पफुल टू डेवलप द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, इसकी जो और एबिलिटीज है। नो इंडोरेंस और लैक्टेड सेशन, नो बच्चों के लिए नो इंडोरेंस और लैक्टेड, ऐसा नहीं है भैया कि आप उनको बोलो जाओ 5 किलोमीटर भाग के आओ, नो नो नीड। जो अंडर 10 बच्चा 5 किलोमीटर इंडोरेंस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हिज हार्ट इज टू स्मॉलर एंड द लंग्स आर नॉट कैपेबल टू कोप अप विद ईच अदर। ट्रेनिंग ट्वाइस पर वीक विद द रेस, तो आप उसको ऐसा करें, जो अगर 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 7 to 12 ईयर की अगर एज है, दिस इज द इंट्रोडक्शन एज। मेरे पास आगे भी है ट्रेनिंग एज 12 to 17 भी है, 17 to 20 भी है, बट आई एम नॉट टुडे डिस्कस विद दिस kind of the thing. So now I am concluding the to this point and then question. So when coaching children, you must remember that they want to have fun and learn new things, right? They should be treated as individuals. उसकी individual जो need है वो आप उसको ध्यान दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। Need to have variety in training. If any injury occurs, the coach should know how to give the first aid for common sports injuries. और कोच को क्या, देखो ये खाली बच्चे के लिए नहीं, ये कोच के लिए है कि फर्स्ट एड आना चाहिए उसको। मोटिवेशन एंड इनकरेजिंग द चिल्ड्रन टू डू द बेस्ट इन नेसेसरी पार्ट ऑफ कोचिंग चिल्ड्रन। तो मोटिवेशन इज द ऑलवेज बेस्ट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड द अदर पीपल आल्सो टू दे कैन डू वेल इन स्पोर्ट्स। So any question? Thank you. Any question? Thank you, sir, so much. Sir, stop the sharing screen. अच्छा, Yes. ठीक है। Just wait. I will make it possible to stop the screen. Just wait. Yes, sir. No problem. आप करवा दो, आप क्वेश्चन कोई है तो देख लीजिए। Yes, sir. Please chat message inside your name and otherwise raise your hand. आपको हाँ जी, हाँ जी, question- रेस हो गया। हाँ हाँ, Yes, sir. First, sir, स्टॉप stop शेयर sharing करो सर, उसके बाद सर अच्छा, easy हो जाए। जस्ट वेट, आई विल जस्ट टेक पार्ट। मैं Yes. अभी करता हूँ, उसको बुलाता हूँ। स्टॉप शेयरिंग कहीं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बोलिए। वेलकम। फर्स्ट मिस्टर वीएन सिंह सर। जी पूछिए। Good morning. गुड मॉर्निंग वीएन जी, क्या हाल है? Fine, thank you. हाँ जी, It was wonderful lecture.
हालांकि थोड़ा रिपीटेटिव हो गया कल मिस्टर देखो मैक्सवेल। सर जी, अब ये तो अभी- सबने दे दिया, हमने तो पहले दे दिया था, चलो कोई नहीं। अच्छा, नो प्रॉब्लम। आपने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करी। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज थोड़ी क्लियर। कैन यू हियर मी नाउ? ओके, हेलो। यस 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 यस। ओके, थिंक एक चीज पर आपने काफी जोर दिया, दैट टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के विषय में बच्चों के। जी जी जी। थोड़ा मेरी कंसर्न है कि अगर हम अभी तक तो, बिकॉज हमारे एकेडमीज में भी बच्चे 14 साल के बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, वी हैव नेवर बीन डूइंग दिस, मे बी न्यू विच यू हैव टॉट अस टुडे, जिसमें कैसे रेगुलेट करेंगे बच्चों का टेम्परेचर को, मतलब कि क्या कोई पार्टिकुलर डिग्री आप प्रिस्क्राइब करते हो कि 100 डिग्री 103 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर, या कितने कम? हाँ बताइए। नहीं, आई एम नॉट मीन टू से कि उसका टेम्परेचर देख के आप ट्रेनिंग कराएं। जो वेदर का टेम्परेचर है दैट शुड बी फॉर्मली गुड होना चाहिए। जो टेम्परेचर है जो बच्चा सहन कर ले, ठीक है ना, इजीली। जैसे कि टेम्परेचर शुड बी 15 to 30, 15 to 35, है ना जी। तो जिसमें ज्यादा ना सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी हो, ऐसा ना हो कि आइस के अंदर ले गए, सिलारू जाके ठंड में दे दिया, या टेम्परेचर 40 चल रहा है तो आप उसको बाहर बुलाएं कि नहीं तुझको आना है 40 टेम्परेचर में। तो अवॉइड दिस। अगर 40 शाम का टेम्परेचर है, यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड चेंज द ट्रेनिंग टाइमिंग, ठीक है ना। कंफर्टेबल जोन में उसको ट्रेनिंग करवाएं। बिकॉज ऐसे अगर सिचुएशन आएगी तो गर्मी के सीजन में तो फिर ट्रेनिंग बंद करने वाली नौबत आ जाएगी, या फिर एसी इंडोर में ही कराना पड़ेगा। हाँ, वो तो आपके पास है सर, आप तो करवा सकते हो। दिल्ली में तो है, दिल्ली में है, बट दूसरे शहरों में तो एसी नहीं है ना। थैंक यू। देखो ऐसा ना हो कि बच्चे को पूरा ही लू के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाए। लू के अंदर ट्रेनिंग नहीं करानी, आप टाइमिंग चेंज कर लो, कंफर्टेबल जोन में उसको ट्रेनिंग करवा लो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट सर मिस्टर विभाग रांची। हाँ जी हाँ जी। गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी, आवाज आ रही है जितेंद्र जी? सर गुड मॉर्निंग। काफी हाँ काफी आ रही है जी, आ रही है। थैंक यू। काफी महत्वपूर्ण बातें बताई आपने। स्पेशली बच्चों के ट्रेनिंग की अगर बात करें तो एक सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आता है कि किसी दिन आप बच्चा आया है और अगर उसको ट्रेनिंग का मन नहीं है, हो सकता है एक दिन पहले कुछ थका हो या कुछ हो घर में पार्टी, तो वो क्या करता है, सिंपली बच्चे होते हैं 10-12 साल के, वो एक बहाना कर देगा, देखेगा कि कोच साहब जो है नी प्रॉब्लम बोलने से या बैक प्रॉब्लम बोलने से छुट्टी दे देते हैं। तो जी। अब होता क्या, ये बड़ा फॉल्स वो एक इंफॉर्मेशन आता है, क्योंकि अगर बड़े बच्चे हो तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि सर आज मतलब मेरा ट्रेनिंग का ये नहीं लग रहा है। अब आप ये सोचने लगते हो कि भाई नी प्रॉब्लम आ गया तो आप अपना प्रोग्राम चेंज करने के बारे में सोचने लगते हो, जबकि उसको जस्ट एक दिन की छुट्टी चाहिए होती है। जी। ये जो थोड़े सा बहाना बच्चे के उसके लिए जो रहता है। मैं सर आपकी बात के साथ एग्री हूँ। मेरी एक आप बात सुन लें, सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी नौबत आई ना कि बच्चा ग्राउंड पे ना आए। अगर बच्चा ग्राउंड पे नहीं जा रहा तो इट मीन द फॉल्ट ऑफ कोच ने उसको हैंडल नहीं कर पाया। बच्चा तो ऐसा होना चाहिए, अपनी मम्मी और पापा को बोले मम्मी टाइम हो गया, 3:30 बज गए, आई एम गेटिंग लेट। हमारे पास ग्राउंड में बच्चे आते हैं, वी आर गेटिंग लेट मम्मी, जल्दी लेके जाओ, मुझे संडे भी छुट्टी नहीं करनी, मुझे कोच साहब के पास जाना है। देखो भैया, जहाँ पे जिस दुकान के अंदर वैरायटी होगी, सामान होगा, दिल लगेगा, हम उसी दोस्त के पास जाते हैं जो दोस्त हमें अच्छा लगे। जैसे आप अपने उस दोस्त से मिलते हो, आपको वो चीजें अच्छी लगती हैं जो आपको अच्छी लगती है और बार बार आप वहीं पे जाते हैं। तो बच्चे को आप वैरायटी दीजिए, इस नौबत इस स्टांस पे आने ही ना दीजिए, वहां तक उसको मतलब जाने ना दे कि बच्चा छुट्टी करे, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गेम के अंदर। माय पॉइंट इज लॉस, दिस मीन आप उसको मोटिवेट करके रखें, उसको वैरायटी दीजिए, उसको स्कूल से आके खाना खा के उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी यही हो कि मम्मी मुझे ग्राउंड में जाना,
और मेरा जो डाइट है बैलेंस है, आप उसको इतना मोटिवेट करके रखें तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये देखो सर, ये प्रॉब्लम आती है वहां आती है जहां हम फोर्सफुली बच्चे से काम लेने की कोशिश करते हैं, फोर्सफुली काम लेने की, या उसको हम पूरा धकेल देते हैं ट्रेनिंग के अंदर, उसकी बियॉन्ड हिज कैपेसिटीज उससे काम लेते हैं हम। जब हम उसकी बियॉन्ड कैपेसिटी से काम लेंगे बच्चे एंड ही इज नॉट एबल टू टेक द लोड, फिर वो बहाना मारेगा। बहाना हम भी मारते हैं दफ्तर में, हम भी मारते हैं दफ्तर में, मेरा सर दर्द है जी, मुझे ये है, मुझे वो है, मैं नहीं जाना चाहता, मेरा ये है, मेरा वो है। क्यों बहाना मारते हैं? बिकॉज वी हैव द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो हमारा सेशन चल रहा है, सम ऑफ द कोचेज इसको बंद करके अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ हो रहा है, बिकॉज दे डजंट हैव द इंटरेस्ट। आप लोग बैठे हो, मैं बैठा हूँ, यू आर द इंटरेस्टेड पीपल। ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं स्क्रीन खोल के, इनका इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ। जिनका नहीं है वो इसको बंद करके फिर कह देते जी हमारा नेट नहीं आ रहा। तो बच्चे को सर आप, ये कोच की गलती है, मैं कहता हूँ, ये उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। बाकी होता कुछ नहीं, इंजरी होती है तो वी विल गो टू द फिजिशियन, फर्स्ट एड देंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे एंड मोटिवेट करके रखेंगे। और पूछिए सर। और छोटे बच्चों को स्पेशली अगर बात करें सर, तो कोच करने में एक और चैलेंज आता है रिगार्डिंग पेरेंट्स, क्योंकि वो बच्चे मोस्टली पेरेंट्स के साथ ही आते हैं ग्राउंड पे। और आप चाहे, हम लोग चाहे जितना भी ये कर लें कि भाई बच्चों को कंपटीशन नहीं करना, ये नहीं करना, पर पेरेंट्स चाहते हैं कि यूं वो चुटकी में उसको चैंपियन बनाना चाहते हैं। तो उसको भी एक डील करना पड़ता है छोटे बच्चे के कोचों को। प्रॉब्लम इज स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो उसको कैसे सर आप कुछ उस पे अगर प्रकाश डाल सके, कैसे पेरेंट्स को मैच्योर किया जाए? हाँ, थ्रू एजुकेशन देखो, थ्रू एजुकेशन बच्चों को भी और पेरेंट को भी। पेरेंट को ये ज्यादा समझना होगा, क्योंकि कोच ग्राउंड के अंदर बच्चा 1 घंटा हमारे पास रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, मैक्सिमम लगा लो 2 घंटे तो रहता नहीं। बट होल डे दे हैव विद द पेरेंट्स। उसकी ग्रूमिंग हमें ऐसी करनी पड़ेगी कि बच्चा जो है वो उसकी ट्रेनिंग उसकी हमारी ऐसे करनी पड़ेगी। दिस इज द रोल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंट एंड द कोच। कोच पहले पेरेंट को बताए भैया इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बात की थी कि वी हैव द टीम गेम्स, ऑर्गेनाइज द टीम गेम्स, टीम कंपटीशन, जैसे कि फुटबॉल है, टीम साइकिलिंग भी करनी है तो टीम में करनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट फिक्स ऑन ए इंडिविजुअल पर्सन की उसके ऊपर चली जाए कि यार इसमें ये हार गया, ये नहीं हारा। अगर भाई 10 बंदों से बॉल नहीं रुकी तभी गोलकीपर के से गोल हो गया ना। अगर 10 बंदों से बॉल नहीं रुकी तभी गोल हो गया, गोलकीपर से खा गया गोल। तो ये बात है। सो इट इज आई थिंक कि both have the parallel responsibility, parents and the coach. They can make the groom the children for the good luck. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसी में गलती हो रही है हमारे ये पास। बहुत बड़ा चैलेंज है छोटे बच्चों को कोचेस के लिए, क्योंकि पेरेंट्स तो आके टाइमिंग लेने लगते हैं, देखने लगते हैं, बाद में घर में जाके बोलते हैं तुम्हारा टाइमिंग ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, कैसा क्यों था। सर जी, एक मेरे पटियाला में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसके पेरेंट ने उसको साइकिल लेके दिया 1 लाख रुपए का, और डेली बोले कि तेरा इधर सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा स्टेट में सिलेक्शन नहीं, तेरा नेशनल में सिलेक्शन नहीं, तेरा मेडल नहीं आया। अल्टीमेटली देखो, सभी कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, हर बंदा हर काम के लिए नहीं बना। फर्स्ट तो एक ने आना, बाकी तो रैंकिंग है, 3rd 4th 10th भी आएगा कोई मेरे जैसा, आना ही पड़ेगा भैया, क्या करे। तो थैंक यू सर। और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो थोड़ा आप उसको देखिए। हाँ, पूछिए। यस सर, नेक्स्ट आई डोंट नो हुज, इसने सर हमारी आईडी का पासवर्ड रखा हुआ है। सुरेंद्र कुमार। कोई नहीं सर, आन दो जो भी है। यस प्लीज। सुरेंद्र कुमार he is Surendra Kumar. Yes, are you here, Mr. Surendra? from Andhra Pradesh, Mr. Surendra. Yes, please continue. Good morning, sir. हेलो। हाँ जी, please, सुरेंद्र, you हेलो। can- हाँ सुरेंद्र, क्या हाल है भैया? हाँ सर, बोलिए। कुछ बोलो, बच्चों बोलो। टेम्परेचर का बात किया, जैसे हम ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को, तो उसमें हम्म। जैसे उनको स्वेटिंग नहीं होता,
हम उस पे लोड दे के देख लिया, ज्यादा ट्रेनिंग करवाया, जैसे दूसरे बच्चों को 5 मिनट स्टेप्स ट्रेनिंग करवाया हमने कंटिन्यू। बच्चे स्वेटिंग से पूरे भीग जाते हैं, पर 1-2 बच्चे ऐसे उनको स्वेटिंग नहीं होता। कंटिन्यू देख रहे समझ गया मैं आपकी बात। दैट इज द दिस इज द पॉइंट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दिस इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द पर्सन। उसके अंदर स्वेट ग्लैंड जो है बच्चों में कम रहते हैं, किसी के जो आपने देखा होगा आपके पाम के अंदर किसी को पसीना ज्यादा आता है, स्वेटिंग ज्यादा होती है, किसी को अंडर आर्म में स्वेटिंग ज्यादा होती है, किसी को फुट में पैरों में स्वेटिंग ज्यादा होती है। सो दिस इज नॉट द केस, नो प्रॉब्लम। इफ द child is healthy and taking the load and if you take the requirements, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल कर रहा है, once you visit the doctor। अदरवाइज ये जो स्वेट ग्लैंड है ये डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो कल भी ये क्वेश्चन आया था उधर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के पास कि आपको जैसे विराट कोहली है उसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए स्पेशल उन्होंने एक ड्रिंक तैयार किया पर्सनली, जो उसका पर्सनल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशिस्ट है, डॉक्टर जो कल थे हमारे साथ। तो ऐसा होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डोंट नो वे टू वरी। कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं, डॉक्टर को एक बार दिखा दो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक Next, sir, Mr. Maxwell Travers. Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Yes, please, sir. जिमी, हाँ जी, आप गुरुजी, आप मेरे स्प्रिंट के बहुत बहुत गुरु हो। आपको देख के मैंने स्प्रिंट लगानी चालू की एंड यू आर द माय रोल मॉडल। Thank you very much. If I am able to give you, satisfy you. This is my, I am lucky if I am satisfied you. थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बच्चों के बारे में उनका जो गर्मी या ठंड बर्दाश्त करने का एक लिमिट होता है बताए थे, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये तो जनरलाइज तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चा अगर स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ तो उसका नेचुरली ठंड बर्दाश्त करने का ज्यादा लिमिट होता है। अगर वो एक बच्चा अफ्रीका में पैदा हुआ तो उसका गर्मी बर्दाश्त करने का लिमिट ज्यादा होता है। तो इसको जनरली तो नहीं बोल सकते कि ये बच्चे का ये लिमिट है या वो बच्चे का वो लिमिट है। अब जैसा इंडिया में भी देखो, जो बच्चा नॉर्थ इंडिया में पैदा होता वो साउथ में आके गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, या साउथ का नॉर्थ में जाके ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इनका जो है इट इज डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफिकल बर्थ, जहाँ पैदा हुआ उनका जो नेचुरल टॉलरेंस ज्यादा रहता। तो इसको जनरलाइज कैसा कर मतलब हाउ कैन वी जनरलाइज दिस? मैं एक बात आपसे शेयर करता हूँ कि टेम्परेचर के ऊपर स्ट्रेसफुल ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। स्ट्रेसफुल वो ट्रेनिंग से होता है, ड्यू टू एक्सेसिव हीट से भी होता है। माय पॉइंट समझ गए ना? वी आर कंसर्न विद द ट्रेनिंग। हम बच्चों की ट्रेनिंग के साथ सारी चीज को, जो हमने खाना है वो भी ट्रेनिंग के साथ रिलेट करना है, जो हमने क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो भी ट्रेनिंग के साथ उसको कंपीट करना है। तो आप ऐसा टाइमिंग रखें जिसमें कि फालतू में उसको स्ट्रेसफुल ट्रेनिंग सेशन ना, ओवर हीट ना हो कि वो थक जाए या ओवर स्वेटिंग हो जाए, गर्मी ज्यादा लग जाए या ठंड ज्यादा। आप यू कैन जस्ट चेंज द टाइमिंग ऑफ द ट्रेनिंग, दैट्स ऑल। इसका कोई एम इज टू जस्ट चेंज द, नहीं इसका कोई लिमिट है क्या? आप कंफर्टेबल, यस कंफर्टेबल जोन में रखिए, 15 to 35 रखिए, है ना? तो शाम को टेम्परेचर, हम दोपहर में बच्चे को क्यों नहीं बुलाते ट्रेनिंग में? आप ये देखो ना, व्हाई वी विल कॉल द अर्ली मॉर्निंग और आफ्टरनून, बिकॉज द टेम्परेचर्स आर द क्लाइमेट इज गुड। इसके आगे यही क्वेश्चन पे अगर 15 डिग्री है तो डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटीज उसका बॉडी भी ओवर हीट हो सकता है, 15 डिग्री में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी दैट द चाइल्ड इज डूइंग। ये नहीं है कि 35 डिग्रीज में उसका कम एक्टिविटी में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 10 डिग्रीज में ज्यादा एक्टिविटी से उसका टेम्परेचर और भी बढ़ सकता। तो वेयर इज द यार्ड स्टिक? उसको कैसा कंट्रोल कर, उसको कैन बी मेजर? वी नेवर मेक द ट्रेनिंग सेशन स्ट्रेसफुल। बच्चे को इतना लोड देना ही नहीं हमने। जो भाई साहब का पहले क्वेश्चन था, दैट विल लीड टू द हिज सेल्फ स्टीम,
सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करेगा, सेल्फ स्टीम लूज करेगा, वो कर नहीं पाएगा, एंड मेक श्योर नेक्स्ट डे ही कैन मेक द एक्सक्यूजेस कि सर मेरा घुटना दुखता है, मेरे सर में दर्द है, उसको बुखार होगा, कुछ भी होगा. नेवर विल बी द स्ट्रेसफुल सेशंस आर नेवर बी. इसमें भी बच्चे में फर्क है ना, तो एक बच्चे में ज्यादा स्ट्रेस बेयर कर सकता है, एक बच्चा कम स्ट्रेस बेयर सकता है. तो हाउ डू वी जनरलाइज व्हाट इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट वी टेक, और हाउ डू वी नो कि कैसा पता लगे कि इसको स्ट्रेस हो रहा? स्ट्रेस हो रहा वो तो ट्रेनिंग से पता चलेगा, उसकी पल्स से पता चलेगा, उसके दीज आर द सम फैक्टर्स. जैसे कि सबसे पहले बॉडी की रेडनेस, कि जिसको हम बोलते हैं उसका जो फेस एक्सप्रेशन है वो उससे पता चलेगा कि ये अभी स्ट्रेस में आ रहा है, पल्स उसकी ज्यादा हो रही है. और उसका लॉस ऑफ, सबसे बड़ी बात, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द ट्रेनिंग. ठीक है ना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द ट्रेनिंग. जब उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना, एक रेपिटेशन जोर से लगा लेगा, 2 जोर से लगा लेगा, तीसरे में कहेगा सर मेरा घुटना दुख रहा है, या कैन आई गो फॉर वाटर, कैन आई गो टू वॉशरूम. तो दीज आर द सम सिम्टम्स. तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा स्ट्रेसफुल ट्रेनिंग सेशन में है. ओके, थैंक यू जिमी, थैंक यू वेरी मच. वो आपके साथ कोप अप नहीं करता, इंटरेस्ट लूज कर जाता है. थैंक यू जी, वेलकम. नेक्स्ट. Thank you, sir. Next, sir, Miss Seema Rani asking questions, sir. Yes, please. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सीमा, हाउ आर यू? फाइन सर. सर मैं ये पूछ रही थी, आपने बोला कि अगर बच्चा है तो कंपटीशन में उसको नहीं लेके जाना चाहिए, जब हम उसको करवा रहे हैं, अभी बच्चा ही है वो, कंपटीशन में नहीं लेके जाते, उसको बुरा लगता है अगर वो हार जाता है. जी. अगर हम उसी के ग्रुप के बच्चों को, जो उसके साथ के बच्चे, उनको हम ले जाते हैं कंपटीशन के लिए, तब उसको बुरा नहीं लगता, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही ये प्रॉब्लम भी है बच्चों के साथ. अगर तो नहीं लेके जाते, वो कहता मुझे लेके नहीं गए, लेके जाते हैं वहां पे वो हार गया हमारे साथ है. हाँ, बच्चे सोचते हैं कि कोच, हाँ, कोच हमें लेके नहीं जाता. अगर हार गया तो दिक्कत, हार के फिर वो ग्राउंड में ट्रेनिंग नहीं करने आता, और वो ट्रेनिंग भी छोड़ सकता है. तो इस चीज को सारी को ओवरकम करने के लिए वी शुड organize the such kind of the competitions which are made from the group training, जो ग्रुप के अंदर हो, इंडिविजुअल ना. my fellow coaches listen please, जब भी बच्चों का कंपटीशन करवाएं वो इंडिविजुअल ना हो, वो ग्रुप के अंदर हो. अगर ग्रुप के अंदर रहेगा तो जीतेंगे भी इकट्ठे, हारेंगे भी इकट्ठे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक के ऊपर नहीं आएगी. उसकी सेल्फ स्टीम को, उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं हार गया या मैं जीत गया, या हारने के बाद कहीं वो ऐसा ना हो कि वो ग्राउंड में आना ही छोड़ दे, उसके मोटिवेशन पे अंतर आ जाए, मोटिवेशन कम हो जाए उसका. ठीक है ना. तो जब भी बच्चों को कंपटीशन करवाएं, तो आपने देखा होगा कि बच्चा चाहे स्कूल में हार जाए चाहे जीत जाए, बट स्कूल वाले इसको कंसोलेशन प्राइज जरूर देके भेजते हैं. चाहे मेडल नहीं मिलता उसको, बट दे कैन गिव द मेडल, कंसोलेशन प्राइज देके देते हैं. वो कंसोलेशन जो प्राइज होता है वो इसीलिए होता है टू मोटिवेट द चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर कॉम्पिटिशन, ताकि वो फ्यूचर के जो कॉम्पिटिशन है उसके लिए मोटिवेट रहे, उसके अंदर नेगेटिविटी ना पैदा हो जाए. और इसके तो कंसोलेशन प्राइजेस आर द बेस्ट सोर्स ऑफ टू इनकरेज द चिल्ड्रन. थैंक यू. नेक्स्ट. Yes sir, today is very good session sir. हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है आज our program attend director Sai Impal Mr. Franz Marvin sir. Welcome to sir this program today, and हमें बहुत खुशी हुई आप thank you very much आए और हमारा सेशन अटेंड किया सर. Thank you so much sir. And sir, some few word our program. Yes sir. For your program, I must thank the experts who has delivered a beautiful and shared the knowledge. But I am not an expert in cycling, but still, perhaps you know Manipur has the history of producing finest cyclists. So we are working hard so that we can produce more and more cyclists
and can bring the laurels for the country. One question from my side, I'm not an expert in cycling, but still I would like to ask one question. What should be the percentage of training on the track and on the velodrome? Whether the percentage of training should be more on the track or should be more on the velodrome? Somebody can, if road. My sound is coming, sir? आवाज आ रही है? Yes, little. Sir, if you tell me, I can correct the question. What Yes. is the percentage of the training on the track and what is the percentage training on the road? Yes. Road में कितना होगा और track में कितना होगा? हाँ, वही है. Yes. Sir, this is a very, very technical question, and the Yes. answer is I'm trying to satisfy you. Sir, first of all, there are the many more factors which depend upon the training. The first factor is the अगर road के ऊपर जाना है तो क्यों जाना है? Why the road is important? Why the track is important? So Yes. we have the 80% training for the long जो distance के हमारे cyclists हैं on the road training. जो road के ऊपर जो training होती है, that is based on the endurance training. इसमें level 1, 2, zone 1, 2, 3, 4, 3 तक zone 3 तक जो training है, that is compiled on the road. And whenever we come for the track, sprinters training is on the track, time trialist training on the track, and we can say short events. All the short events trainings conducted on the track, and all the long events, endurance-based events, are conducted on the road. So, as far as the specification of the event, so training should be also generalized with how much track is required, how much road training is required, how much endurance is required, how much speed is required, how much strength training is required. Right? This is the answer. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Okay. And sir, next question, Mr. Ajit. हाँ जी सर. Just wait. Yes, please, sir. Hello. Mr. Ajit, sir. Yes, please. Yes, sir. Hello. Yes, yes. Continue, sir. हाँ जी. सर जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर अभी आपने, आई एम गुड सर. अभी आपने बताया बच्चों को ग्रुप ट्रेनिंग में वो कराना है, तो ऐसे कौन सी इवेंट हैं जिसमें बच्चे ग्रुप में पार्टिसिपेट करके अपना जिसमें उस पर इंडिविजुअल की काबिलियत रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए? अच्छा, ऐसे कौन से इवेंट या ऐसे कौन सा कंपटीशन? हाँ, सर साइकिलिंग में ऐसे कोई इवेंट होने चाहिए ना, जैसे फुटबॉल. समझ गया. हाँ जी. समझ गया. तो नंबर 1 इज द टीम गेम्स. जैसे कि हमारी टीम चलती है, बट वी आर नेवर बी डिसाइडिंग कि टीम लगा बच्चे, दे आर नॉट एबल टू राइड द टीम ऑन द ट्रैक, है ना. ये ऐसा कुछ नहीं है. तो वो टीम चला नहीं सकते इकट्ठे होके रोड ट्रैक के ऊपर, ठीक है ना. तो वी कैन मेक द ट्रेनिंग सच लाइक दैट कि ग्रुप के अंदर ही वो ट्रेनिंग करे, ग्रुप के अंदर ही वो कंपटीशन करे. अब आपका क्वेश्चन है कि ग्रुप के अंदर कैसे करे, तो जरूरी नहीं साइकिलिंग करे. वी हैव द कंडक्टेड द फुटबॉल, हैंडबॉल एंड द अदर कॉम्पिटिशंस. नहीं सर, जैसे सीमा ने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे कंपटीशन में कुछ जाना चाहता है, उसके साथ के जा रहे हैं, वो नहीं जा पा रहा, फिर आपने कहा जाना क्यों नहीं, जो आप मना करते हैं ना कि जिसको नहीं ले जाना वो हार जाएगा, तो फिर बाद में डिमोरलाइज हो जाता है. और ये नहीं कहते कि नहीं लेके जाना, लेके जाओ, बट द कंपटीशन शुड बी हेल्दी. और वहां पे जो ऑर्गेनाइजर है वो बच्चे को कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कंसोलेशन प्राइज दे के भेजें. सो ही कैन नेवर बी
एस्टिमेटेड कि आई एम द लूजर। उसके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि यार मुझे प्राइज नहीं मिला, आई एम द लूजर, बिकॉज ही डजंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग एंड द लूजिंग। तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है कभी हार और जीत का, तो वो जीतना ही चाहता है। उसको कुछ भी दीजिए आप, प्राइज वगैरह कुछ भी दीजिए। इसीलिए स्कूलों में आपने पता they can organize the sports and the cultural functions in the schools, but they can give the all prizes to all the participants. That is the main motive behind this. सर जी, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ये नहीं कि हम उसको करेक्ट पिक्चर बताएं, उसके बाद भी अगर वो इंसिस्ट करता है जाने का तो उसको पहले बता दें कि भैया हम तेरे को ले जा रहे हैं, बट डोंट थिंक कि यू विल विन अ मेडल, बट हाँ फॉर एक्सपीरियंस और उसके लिए आप चल सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें भी देन यू हैव सम रिस्ट्रिक्शंस कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इवेंट में। वेदर उसका नंबर पता नहीं उसमें। अजीत ऐसा क्लियर पिक्चर तो बता देंगे, बट हिज माइंड इज नॉट ए सो मैच्योर कि ही कैन एबल टू टेक द लोड। उसका माइंड इतना मैच्योर नहीं है कि उसको हम कि वो ये क्लियर पिक्चर को देख लेगा और उसको सहन कर पा लेगा। तो हम उसको थोड़ा मैच्योर हो जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 16 14, देन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Thank you, sir. This last question, Miss Satwinder Kaur. Yes, Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, madam. सर मेरा भी सेम वही क्वेश्चन था जो अजीत सर ने क्वेश्चन किया था, सेम मेरा भी वही क्वेश्चन था। तो मेरा कहना है कि बच्चों को हम यहाँ ट्रेनिंग मैंने ग्रुप में करवाएंगे, पर वहाँ पर जो हमारी कंपटीशन होती है वो इंडिविजुअल होती है, तो उस समय बच्चे भी बोलते हैं कि नर्वस हो जाते हैं। सो यू शुड प्लान द ट्रेनिंग सच लाइक दैट कि वो बच्चा नंबर 1 तो नर्वस ना हो। आप देखो जो ट्रेनिंग है और कंपटीशन, इसका एक बड़ा आपको देयर इज अ वेरी थिन लाइन। बहुत आपको एक सोच समझ के ट्रेनिंग प्लान करनी पड़ेगी बच्चे की, क्योंकि you are not giving the training, you are grooming उसको साइकोलॉजिकल नीड्स, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसको एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस वो सीख रहा है। वो लाइफ का एक्सपीरियंस सीख रहा, खाली कंपटीशन में नहीं जा रहा। वो ही इज ऑलवेज विद द न्यू लर्न न्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक है ना, लर्न हम भी अभी तक मैं तो अभी तक कोचिंग सीख रहा हूँ। तो बच्चों को तो ऐसा कोई उनके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, ना जीतने का, ना हारने का, ना कोई स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकता बच्चा। तो वही चीज हमने करनी है, हमने उसको स्ट्रेस ज्यादा मेंटली करना। तो गेम को कहीं ऐसा ना साइकोलॉजिकल भी इसको मैंने वो करना पहले से साइकोलॉजिकल ऐसा नहीं ऐसे कर सकते हैं बेटा। साइकोलॉजिकल बूस्टिंग इज रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड बिफोर द स्टार्ट द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। साइकोलॉजिकल बूस्टिंग, यस। ओके, थैंक यू सर। हाँ, आप कराएं ट्रेनिंग, बढ़िया बच्चों को मोटिवेट रखें। सर वन मोर क्वेश्चन, प्रियंका देसाई। Yes, please. Good morning, sir. Hello. Yes, Priyanka, good morning. Good morning, sir. सर अगर हमारे पास 9 से 10 साल का बच्चा ट्रेनिंग के लिए आता है और उसने कभी पहले एक्सरसाइज नहीं की है, तो हम उससे कुछ साइंटिफिक टेस्ट पहले करवा के लेंगे, जैसे कि कुछ HB चेक करना है या अदर कुछ? Yes, that is much more important. That is much more important. सबसे पहले तो आप उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो ले लें। कहीं ऐसा तो नहीं, वेदर ही इज नॉट अस्थमेटिक तो नहीं है, वो उसको कोई स्किन की एलर्जी तो नहीं है, वेदर ही हैज एबल टू टेक द लोड। ठीक है ना। तो आप जो हम जैसे हमारे साई में कोई भी पे एंड प्ले में या STC में जहाँ और बच्चा लेते हैं, तो वही जनरली फिटनेस सर्टिफिकेट एक ले लेते हैं। ठीक है ना। तो फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर से आप एक जरूर ले लें, वो आपको भी सेव करेगा और बच्चे को भी सेव करेगा। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, नौकरी बचाना अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बात है भैया। कोचिंग तो बाद में भी हो जाएगी, नौकरी बची रहेगी तो कोचिंग होगी, समझे ना प्रियंका? यस सर। हाँ, पहले फिटनेस ले लें। ये नहीं मैं कहता कि उसका VO2 मैक्स चेक किया जाए या उसका कुछ स्ट्रेंथ का लेवल चेक किया जाए। नो, वी आर एबल टू डू दिस। हम उसको ये स्ट्रेंथ और VO2 मैक्स का टेस्ट ये हम खुद करवा लेंगे, स्टेप टेस्ट करवा लेंगे और टेस्टिंग में चले जाएंगे।
लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी एक हिस्ट्री ले लें आप, मेडिकल हिस्ट्री बच्चे के पेरेंट्स से ले लें कि भैया ये कहीं अस्थमेटिक तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, सिंपल। Okay. Thank you, sir. Start with the very basic exercises, है ना? Thank you. Thank you, Priyanka. Thank you, sir. I invite to our director, M. Venkatesh Reddy, sir. Yes, sir, please. Hello, Jitendra ji. It was a Yes, very sir. good session. You have covered a very good subject, but it was a little bit of repetitive as yesterday itself, Maxwell saying. And but Yes, yes. a very good different way of coverage you have done it. It's a very good this thing, and you have given a good answers, and the questions was also good. And we are happy that our Francis, our Imphal director, has also joined this session, and Onkar ji also is there. And I request that you have two more sessions, I believe. And in that, if you could concentrate on, or if you could add this subject like gear ratio and planning. If these two parts also, if you have included in your coming topics, that will be very good. And if you have a time also, you can cover on elite athletes training. So these are the three topics which has been demanded many times by our participants as well as the trainers over here. So as we are, you're the faculty member of our reputed Patiala Center, you please cover these subjects also in your upcoming lectures. So that will be very good, and I expect that it will happen. So it was a very nice day that our people are asking questions and you are giving right answers for this. And with this, I thank you very much and thank you all. Thank you, sir. Nice of you. Thank you, sir. I invite to Mr. Onkar Singh, sir, our chairman, CFI, sir. Yes, sir, please. Good morning. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, Okay. sir. Jimmy ji, thank you so much. It was a wonderful lecture. You covered quite a bit of the beginners aspect of cycling, which was really quite informative. And of course, questions, answers were really good. So it reveals that a lot of interest is generated among our cyclists, among our coaches. Thank you so much, Jitendra, for such a elaborate and descriptive session. I welcome our director from Imphal. So you are most welcome into this session, and I hope you are doing good there. I've got. Can you hear me, sir? Can you hear me, sir? Seema, unmute करना उनको जरा. Hello. Yes, sir. Please, just 1 minute. Yes, sir. Director Imphal, please. Yes, sir. Sir, can you hear me? Sir, not here, sir. He's not there. Okay, No, sir. thank you. In your case, it is clear. Okay, so I think it was a wonderful session, and once again, I thank all of our coaches who are really putting up a lot of efforts to learn more and more, and to be part of this, this whole program. Thank you very much, and I hope you see you tomorrow, and have a nice day. Thank you so much, Reddy ji. Thank you so much for being there all the time, and you are really a great inspiration to all of our coaches. And the topics you mentioned, I would definitely would like to like the panelists to see that these three topics which Mr. Reddy has mentioned should be included. Maybe Mr. VN Singh or Mr. SK Sharma can put a bit light on all these aspects. So I'll just discuss with them, and I hope this will also come up in our next one of our next sessions. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir.